everybody, let's continue with rotational dynamics chapter जो है उसमें NCERT के questions हम solve कर रहे हैं and we'll go for that hot spot higher order thinking skills. इसमें से question number 6 जो है उसे मैं शुरू करना चाहूँगा. Question number 6, no doubt that's a star problem. Question number 6 देखते हैं. Let's go for this hot question number 6. अच्छा क्वेश्चन है, स्टार या हाफ स्टार बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग. वेल लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन नो. यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग. A stone of mass m is tied to the end of a string, is whirled around the horizontal circle. Neglect the force due to gravity. ठीक है, there is no force due to gravity. The length of the string is reduced gradually, keeping the angular momentum of the stone about the center of the circle constant. ये बहुत important चीज़ है यहाँ पे देखने लायक. Keeping the angular momentum of the stone about the center of the circle constant. Angular momentum is constant. L is equal to I omega is equal to constant. और एक चीज यहाँ पे दी गई है, क्या दिया है उन्होंने यहाँ पे? The length of the string is reduced gradually. Length is reduced gradually. Length is reduced gradually. So R is decreased. Length of the string is reduced gradually. Okay. ये किस प्रकार का है? It's like, let's see, this is something, कुछ इस प्रकार का है. तो यहाँ पे वो string है. String is connected over here. यहाँ पे वो stone है. And this is the stone. ठीक है, वो string है. And it is revolved with world around this. Okay, तो omega is not constant here. ठीक है, लेकिन reduce r reduce किया गया है constantly. So what are they saying? That the tension in the string is given by T is equal to AR raised to N. Okay. By the way, यहाँ का टेंशन क्या हो जाएगा अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो this tension is equal to, you have to neglect the weight, so mr omega square. Tension is equal to mr omega square. Now by the way, they say that L is equal to I omega is equal to constant, isn't it? अब इसके लिए अगर ये मास m है, तो I will say that L is equal to I omega, and that is also equal to ये m क्या हो जाएगा जी? m is equal to r square into omega, ये हो जाएगा. और ये कांस्टेंट है बोला ना उन्होंने, mr square into omega. And therefore let me substitute for this L. L नहीं, ओमेगा के लिए मुझे substitute करना पड़ेगा, isn't it? I'll have to substitute. ये ओमेगा क्या हो जाएगा? L upon mr square. Why am I substituting in terms of L? Because L is a constant. So I'll say that this is nothing but m into r. ओमेगा का स्क्वायर मतलब L square upon m square r raised to 4. तो इसमें से एक m कैंसिल हो जाएगा. What do we get there? This will become L square upon m into r raised to minus 3. This is tension. Now you compare this tension, because this is a constant, ये constant है. हम इस टेंशन को कंपेयर करेंगे T is equal to A r raised to n. अगर इस टेंशन को मैं कंपेयर करता हूँ, if I compare this, then what is this? R is equal to, sorry, n is equal to minus 3. So n is equal to minus 3 is the answer. I cannot call this as a star, but it's a good question. This is higher order thinking skills में से 6th question. HOTS. I hope this is clear to you all. I'll go for the next question.
Let's go for the next question. Question number 6 के बाद I'll go for question number 7. One more good question here. Question number 7. चलिए क्या दिया है देखिए यहाँ पे. A rod of weight W is supported by the two parallel knife edges A and B and is in equilibrium in a horizontal position. The knives are at a distance D from each other. Okay. The center of mass of the rod is at a distance x from A. The normal reaction on A is Ra and B is Rb. तो चलिए शुरू देखते हैं. लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस. इसका अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, देयर इज अ रॉड. कुछ इस प्रकार का रॉड है समझो, ऑफ वेट W. ओके. So the weight of this rod is W, which will be acting midpoint. तो यहाँ से उसका weight act करेगा नीचे. Let me show it over here. This is the weight of the rod. W, and this is acting through point C. This point is called as C. We call this point as C. Two parallel knife edges A and B. अच्छा, अब ये जो है यहाँ पर इसको सपोर्ट किया गया है दो एजेस से. दिस टू एजेस, इसको मैं बोलूंगा दिस इज द एज एट ए and this is the edge at B. यहाँ का रिएक्शन कहलाएगा आर ए, यहाँ का रिएक्शन कहलाएगा आर बी. डेलिबरेटली मैंने इसको द डिस्टेंस बिटवीन, इनको मैंने असिमेट्रिकली प्लेस नहीं किया. द नाइव्स आर एट अ डिस्टेंस. नाइव मतलब नाइफ एज मतलब ऐसा पिन पॉइंटेड होता है सपोर्ट. नाइव्स आर एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर. ओके. So the distance between the two knives is D. ये distance measure कर लो. So this distance is D. The center of mass of the rod is at a distance x from A. ये distance जो है वो x है और ये x है. तो यहाँ का distance कितना हो जाएगा? D minus x. This distance is going to be D minus x. I hope this is clear. ये D है, D minus x है. The normal reaction at A and B is Ra and Rb. Then Ra upon Rb is equal to. ये सिस्टम पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में है. फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर अगर इक्विलिब्रियम में है तो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम we say for translational equilibrium summation of all the forces is equal to 0. The forces in x direction and forces in y direction, but there is no force which is acting in the x direction, so forget about this. The summation of y forces Ra, this is the weight W which is acting, so Ra plus Rb is equal to W. ये तो हो गया, लेकिन मुझे सिर्फ Ra अपॉन Rb चाहिए. फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, लेट मी राइट डाउन. फॉर rotational equilibrium, summation of moments of all the forces about A is equal to 0. मैं दो मोमेंट इक्वेशन लिखूंगा. summation of all the forces about A is equal to 0. तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा बताइए. take moment about this, take moment about this. So this is the moment center.
दिस इज द मोमेंट सेंटर। तो क्या आएगा बताइए। देखिए इसकी वजह से ये है मोमेंट सेंटर। सो जो भी कुछ फोर्सेस अप्लाई करें उसका मोमेंट अबाउट दिस चाहिए, तो इसकी वजह से जो मोमेंट आएगा ये इस तरह से ऐसा जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और ये मोमेंट पॉजिटिव होगा। वेयर एज द मोमेंट बिकॉज ऑफ द वेट इट विल ट्राई टू टर्न इट लाइक दिस, सो दिस इज द क्लॉकवाइज माइनस वाला मोमेंट होगा ये। लिखिए मोमेंट इक्वेशन क्या आएगा। इट इज द फोर्स आर बी into the perpendicular distance. The perpendicular distance between A and B is D, RB into D. ओके ये प्लस होगा, माइनस ये माइनस होगा, W इंटू क्या होगा, X is equal to 0. W into X is equal to 0. So what will be RB is equal to? RB is equal to WX upon D. WX upon D. This is equation number 1. Similarly, I'll take moment about B. About B, I'll take the moment now. क्या मिल जाएगा बताओ। If I'll take the moment about B मतलब ये, ठीक है। तो इसका मोमेंट जो आएगा ये देखिए, इसकी वजह से यहाँ पर अगर इसको हम फिक्स करते हैं तो ये इस तरह से ऐसा घूमेगा। सो दिस इज अ क्लॉकवाइज मोमेंट जो कि माइनस होगा, एंड ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा जो कि प्लस होगा। तो टेल मी द मोमेंट इक्वेशन नाउ, क्या आएगा बताइए। मोमेंट अबाउट टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, सो इट विल बी आर ए माइनस आर ए इंटू डी प्लस W into D minus X. Force and perpendicular distance. Clockwise है तो minus, anti-clockwise है तो plus. Are you understanding this moment का directions? Are you understanding the moment का directions is equal to 0? या RA is equal to RA into D उधर चला जाएगा. So this will become RA is equal to W into D minus X upon D. This is equation 2. और इसका मुझे कोई फायदा ही नहीं हुआ. That's done. अब क्या करेंगे? Let us take the ratio of these two. Therefore, what is RA upon RB? RA upon RB is this upon this. तो इसमें से W by D cancel हो जाएगा. So it will be simply D minus X upon D. And that is option number C. C is the answer there. Is this clear? Now this was the problem from HOTS, higher order thinking skills. इसका 7th problem था ये. Let me go for the next question now. अगला question. Is this clear to you all? Okay. चलिए. I'll go for the next question. Now the next question is real gem of a question. बहुत सही क्वेश्चन है अगला वाला जो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। I'll mark it as a star problem or a double star problem you can say. चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। Okay, let's begin now. Now for simplicity मैं क्या करूँगा, ये जो पॉइंट है ना इसको मैं पॉइंट O ले लूँगा, इससे मैं पॉइंट O बोलूँगा, just to make it little clear. A particle is projected at a time t is equal to 0. A particle is projected at the time t is equal to 0 from point O. O मतलब origin में ले लूँगा, O मतलब origin, O on the ground with a speed v0 at an angle of 45 degree to the horizontal. Okay, the angular momentum of the particle about O at time t is equal to v0 upon g. टाइम क्या दिया है, v0 upon g. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. is तो लेट मी ड्रॉ द स्केच फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल. तो इसका पहले हम स्केच ड्रॉ कर लेते हैं. तो भाई ये है पार्टिकल, ये पार्टिकल है, ठीक है. ये पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है. तो व्हेन दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, यहाँ से उसको प्रोजेक्ट किया है. दिस इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है, विद वेलोसिटी v0 मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल.
थीटा इज इक्वल टू 45. ओके, थीटा इज इक्वल टू 45. थीटा बोलो, अल्फा बोलो, जो भी कुछ है, इजंट इट? ठीक है। अब ये इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, दिस विल हैव टू कंपोनेंट्स. उसका एक कंपोनेंट होगा इस तरह से, और उसका एक कंपोनेंट होगा यहाँ पर ऐसे, और दूसरा कंपोनेंट होगा वर्टिकल, नेचुरली. तो इसके दोनों कंपोनेंट्स मैं यहाँ पे दिखा दूंगा. So I'll say its initial velocity along x direction, and this is its initial velocity along y direction. So ux is equal to v0 cos 45, v0 cos 45, or for that sake v0 upon root 2. Whereas its vertical component is also v0 v upon root 2, क्योंकि ये हो जाएगा v0 upon root 2, बराबर है. sin 45 cos 45 सेम ही रहेगा, isn't it? This initial vertical velocity, अब ये जो है ये कोई चेंज नहीं होगा. This is equal to the final vertical velocity, final horizontal velocity, u x is equal to vx. Final horizontal velocity सेम ही रहेगा, because there is no force which is acting in the x direction. लेकिन ये चेंज होता रहेगा क्योंकि यहाँ पर acceleration a is equal to minus g act करेगा. We are talking about the projectile motion में, projectile motion की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, चलिए. अब जैसे जैसे ये आगे 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 चला जाएगा, ये आगे जा रहा है. ठीक है, दिस इज परफॉर्मिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन. तो वी आर सिलेक्टिंग सम पर्टिकुलर इंस्टेंट. यहाँ पे जब वो पहुंचता है तो वो टाइम है t इज इक्वल टू v0 अपॉन g. इतना टाइम पर वो यहाँ पर पहुंच चुका है. जब वो यहाँ पर पहुंच जाता है तो इसके वेलोसिटीज जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे. वेलोसिटीज मतलब इसका जो दूसरा वाला वेलोसिटी होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx, and vertical velocity will be vy. And accordingly this will have its momentum in that direction. It will have its momentum in that direction. उसके मोमेंटम्स भी होंगे, देखो इसी डायरेक्शन में, इसी तरह से, बराबर है क्या? This will have its momentum in those directions. Let me repeat. This is the velocity in the y direction, and accordingly, as I told you, that it will have the momentum. Momentum I denoted by px, which is equal to mass into vx, and this is the momentum in the y direction. I'll call this as mass into velocity in the y direction. समझे? I hope this is clear to you all. और ये है वो पार्टिकल, दिस पार्टिकल इज एज एट दिस पोजीशन. अब ये है ओरिजिनल पोजीशन और ये है उसका न्यू पोजीशन. इट्स न्यू पोजीशन हैज गॉट its coordinates as x comma y. इस न्यू पोजीशन हैज गॉट कोऑर्डिनेट्स x comma y. अच्छा, इसका न्यू पोजीशन का कोऑर्डिनेट्स अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, if I take this, इसकी न्यू पोजीशन की अगर मैं बात करूँ, लेट अस से इट्स न्यू पोजीशन, मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूँ, पी बोल देता हूँ. उन्होंने पी शुरुआत वाले पॉइंट को बोला है, तो नया पॉइंट है, उसको मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा. इसके लेकिन कोऑर्डिनेट जो है वो x comma y है. इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x comma y. कैन यू टेल मी व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस? इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? r bar is equal to, this is called as position vector r bar. यही पोजीशन मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, सेम पोजीशन. एंड दिस r bar is equal to xi plus yj. Any doubts about this? This is r bar is equal to xi plus yj. समझे? यहाँ पर मैंने सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन और उसका वेक्टर पोजीशन है वो एक्सप्लेन किया है अभी तक. समझ में आ गया? तो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट दिस पॉइंट पी. पी मतलब ओ की बात हो रही है यहाँ पे. इनिशियल पॉइंट को उन्होंने पी बोल दिया, तो मैं इस पॉइंट को ही ओ बोल दे रहा हूँ. ओ बोलो या पी बोलो, व्हाटएवर. ठीक है. अब मुझे बताइए कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम which is given by L bar, isn't it?
it is nothing but L bar, and it is nothing but क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? द एंगुलर मोमेंटम इज आर बार, एल बार इज इक्वल टू आर बार प्लस क्या होगा ये? कैन यू प्लीज टेल मी? एंगुलर मोमेंटम is nothing but um, it is vector position, vector format is given by r bar plus p bar, that is the angular momentum का vector notation. अगर आप देखते हो यहाँ पे the angular momentum is given in the angular momentum यहाँ पे दिया था, देखो angular r l into और उसका जो वेक्टर लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी डिनोटेड बाय p बार, एंगुलर मोमेंटम इज एल बार इज इक्वल टू आई ओमेगा, लेकिन इन दोनों का कनेक्शन है आर बार क्रॉस पी बार, तो एंगुलर मोमेंटम आप इस फॉर्मूले से करिए या इस फॉर्मूले से करिए, तो यहाँ पर मुझे उसको आर बार क्रॉस पी बार तरीके से लिखना पड़ेगा, isn't it? Now what is that is nothing but L bar is equal to R bar, क्या होगा? R bar is nothing but xi plus yj cross P bar is pxi plus pyj. So if I need to take the dot product of this, sorry, cross product of this, will be I, j, k, this is x, y, 0, this is px, py and 0. तो ये होगा उसका वेक्टर फॉर्मेट एंगुलर मोमेंटम का. दिस इज द वेक्टर फॉर्मेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड देयरफॉर एल बार इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, आई इंटू कुछ नहीं, जे इंटू कुछ नहीं, बट इट विल बी के इंटू के कैप इंटू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स. सो दिस इज इन द वेक्टर नोटेशन, और ये होगा उस एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड. तो इन शॉर्ट मुझे एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स ये फाइंड आउट करना है यहाँ से. तो अब मुझे पी एक्स और पी वाई ये लिखना पड़ेगा, पी एक्स एंड पी वाई आई हैव टू राइट डाउन. तो उसके लिए पहले मुझे पी एक्स एंड पी वाई, पी एक्स इज नथिंग बट एम इंटू वी एक्स एंड पी वाई इज नथिंग बट एम इंटू वी वाई, ये सब करना पड़ेगा. सो मेरा पहला काम है कि पी वाई और पी एक्स फाइंड आउट कर ले बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड फर्दर नाउ, इसी को आगे लेके चलते हैं. एनी डाउट सो फार? अभी तक किसी को कुछ डाउट्स है? समझ में आया? नाउ so my job is to find Vx and Vy, Vx and Vy. तो Vx Vy पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो Vx is Ux only, ये तो हमको पता है, Vx is equal to Ux. तो Vx की तो बात कोई बात नहीं है, Vx तो I got it. अब Vy के लिए मैं क्या करूँगा? For Vy I'll consider the uniformly accelerated motion along y direction. Uniformly accelerated because this is a projectile motion which is a combination of हॉरिजॉन्टल वाला जो है यूनिफॉर्म मोशन एंड वर्टिकल वाला यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो यहाँ पर वो जब चला जाता है, आई यूज द फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. तो यहाँ पर हो जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा. यहाँ पे क्या होगा बताइए? फॉर्मूला इफ आई यूज हियर, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर? व्हाट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन? सो इट इज वाई, it is y. What is its initial component in the y direction? Will be v0 upon root 2 velocity component. And time कितना है जी? यहाँ से निकलने के बाद v0 upon g is the time there, v0 upon g minus half g, that is g by 2 t square, इसका स्क्वायर हो जाएगा v0 square upon g, ऐसा बनेगा. So what is this y? vy is equal to vy नहीं, एक मिनट, मुझे ये तो नहीं चाहिए, एक मिनट, मैं ये वाला नहीं यूज करूंगा, होल्ड ऑन प्लीज. आई यूज द फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. इंस्टेड ऑफ दिस आई यूज द फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. ये फॉर्मूला यूज करना चाहूंगा मैं. यहाँ पे क्या बन जाएगा देखते हैं, v vy uy ay, फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, यही चाहिए मुझे, vy चाहिए ना, vy चाहिए. So vy I have to find out is equal to uy. Uy is this v0 upon root 2 into sorry plus acceleration. Acceleration is actually minus g into t is v0 upon g. इसमें से g gets cancelled. So what do you get there now? That is equal to
बोलिए। सो दिस विल गिव मी g गेट्स कैंसिल, v0 vy, v0 कॉमन आएगा, सो तो या तो आएगा v0 अपॉन रूट टू माइनस v0। दिस इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। तो मुझे यहाँ पर जो मोमेंटम है उसमें से मास पता है, vy मिल गया, m पता है, vx मिल गया, सो px py मिल गया। तो मुझे बस इसमें अब सब्स्टिट्यूट करना है इसको, आई जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट इट ओवर देयर। अब मुझे इसमें x और y भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जब वो यहाँ पे चला जाता है तो टू फाइंड आई नीड टू फाइंड आउट x एंड y आल्सो, x एंड y, x एंड y, ये फाइंड आउट करना है। और ये vx और vy मैंने फाइंड आउट कर लिया, आई जस्ट प्लेस इट ओवर हियर, आई प्लेस इट ओवर हियर। और ये जो मैंने फाइंड आउट किया है इसका मुझे कोई मतलब नहीं है, आई जस्ट इरेज इट आउट, v इज इक्वल टू, नहीं इसको यूज कर लूंगा मैं टू फाइंड आउट x एंड y। अब देखिए x जो है यहाँ से वो उधर चला जाता है, सो x मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है, और y वाला जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, isn't it? यूनिफॉर्म मोशन इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन का मोशन यूनिफॉर्म वाला मोशन है। सो वो हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, x इज इक्वल टू स्पीड कितना है along x डायरेक्शन, इट इज नथिंग बट v0 अपॉन रूट टू, और टाइम कितना है वो t, so that is nothing but v0 upon root 2 into the time is उन्होंने दिया है v0 upon g, so this is x का position, x is given by v0 square upon root 2 g upon root 2 into g, this is x। और y यहाँ से मिलेगा मुझे, देखिए t square g square हो जाएगा यहाँ पे, s is equal to ut plus half a t square uy t minus half a t square। अब इसमें से एक g कैंसिल हो जाएगा, so this will become v0 square अपॉन रूट टू जी, कॉमन आएगा तो ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट टू, ये बन गया 1 माइनस 1 अपॉन रूट टू, ऐसा बनेगा। या तो फिर आप इसको ऐसा ही लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, v0 स्क्वायर अपॉन रूट टू जी माइनस v0 स्क्वायर अपॉन टू जी, दिस इज y। अब ये है x y, ये है vx और ये है vy, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, ये वाले। सो L इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, समझेगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स एक्स क्या है, ये रहा वी जीरो स्क्वायर अपॉन रूट टू जी पी वाई इज एम इंटू वी वाई, तो एम यहाँ पर लिख लीजिएगा, एंड वी वाई रहा ये वी जीरो अपॉन रूट टू माइनस वी जीरो माइनस वाई इज दिस v0 square upon root 2g minus v0 square upon 2g, this is y into mass into px, px मतलब vx मत जाइए, vx is this only, ये रहा vx v0 upon root 2। चलिए इसको मुझे अभी सिंप्लीफाई करना है, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, व्हाट कैन यू टेक कॉमन, आई थिंक इसमें से मुझे m कॉमन मिलेगा, v0 का क्यूब कॉमन मिलेगा, v0 स्क्वायर एंड v0 एंड अपॉन g कॉमन आएगा, v0 क्यूब अपॉन g, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखिए m गया है, दिस विल बिकम 1 अपॉन रूट टू, अंदर गया तो 1 अपॉन रूट टू इंटू 1 अपॉन रूट टू इज हाफ, माइनस ये v0 गया है 1, ये आ गया, माइनस m v0 स्क्वायर g सब गया, 1 अपॉन रूट टू इधर जाएगा, अंदर गया तो इट विल बिकम हाफ माइनस 1 अपॉन टू रूट टू, इस तरह से हाफ
ये देखिए ये माइनस हाफ और ये माइनस हाफ, -1 बनेगा, तो 1 माइनस, एक सेकेंड है, दिस विल बिकम 1/√2 आएगा ना यहाँ पे, या दिस न्यू ओपन, सो दैट विल बिकम mv0 क्यूब अपॉन g इंटू 1/√2, ये हाफ भी जाएगा, देखिए प्लस हाफ माइनस हाफ गया, so this will become 1/√2, ये माइनस है और ये प्लस है, 1/2√2, करेक्ट, सो दैट विल बी 1/√2 बाहर आएगा, mv0 क्यूब अपॉन g 1/√2 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में आएगा -1 प्लस हाफ is minus half, and therefore this will become minus mv0 cube upon g into 2√2, ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया, this is the momentum and it is option A is the answer there, this is option A, इन्होंने माइनस साइन नहीं दिया है, but that's the answer, it is directed away, is this clear to you all, and this is no doubt मेरे को लगता है ये डबल स्टार प्रॉब्लम होना चाहिए, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, is this okay, is this clear, please check whether this is clear to you all. Hello, hello, hello. Yes, sir. समझ में आ गया क्या ये प्रॉब्लम? Yes, sir. So let me go for the next question now. So that was question number 8. Quite a problem this was. I'll go for the next question. That is question number NCERT exemplar में से third question. देखिए क्या दिया है यहाँ पे, जनरली हम लोग जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई वाला होता है। देखिए जनरली जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि भाई दिस इज यू नो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जब हम इसको एक्स और वाई बोलते हैं तो हमारा जेड एक्सिस होता कहाँ है? कैन यू टेल मी वेयर इज द जेड एक्सिस? जब हम एक्स और वाई ऐसा लेते हैं तो जेड एक्सिस कहाँ पर होता है? बताइए, वेयर इज द पोजीशन और लोकेशन ऑफ जेड एक्सिस? जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो एक्स वाई तो ऐसा हो गया, जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द पेपर और वो ऐसे बाहर आ रहा है ना, अवे फ्रॉम द, बराबर है क्या? मतलब 3D स्केच अगर ड्रॉ किया जाए तो ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसा होता है हमारा, समझे क्या? वही अगर मैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज राइट हैंडेड ट्रिपलेट की एक्स, तो उसी तरह से अगर हम देखें इसको, राइट कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम एक्स टू वाई, द आउटस्ट्रेच्ड थंब विल गिव यू जेड डायरेक्शन। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम वाई टू जेड, द आउटस्ट्रेच्ड थंब विल गिव यू एक्स डायरेक्शन, एंड कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम जेड टू एक्स, ऐसे द आउटस्ट्रेच्ड थंब विल गिव यू वाई। इसीलिए इसे कहते हैं लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, लेफ्ट हैंडेड सॉरी राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम, ये सब राइट हैंडेड है। तो x से y को अगर हम हमारे
फिंगर्स कर्ल करेंगे तो मुझे z मिलेगा, y से z को कर्ल करोगे तो x मिलेगा, z to x करोगे तो y मिलेगा. I hope this is clear to you all. Did you understand? This is right. This is called as right-handed system. हम इसे कहते हैं right-handed system. Is this okay? So ये right-handed system है, and we always make use of right-handed system. ठीक है, in right-handed system. अब यहीं पर अगर आप मुझे बताइए कि अगर मैं y और z ले लेता हूँ, जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, वो अगर मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई दिस इज y एंड दिस इज z, तो x कहाँ पर होगा? नेचुरली अगर इसका 3D स्केच बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार होगा, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस एंड नेचुरली दिस इज x एक्सिस. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. तो जैसे हम अभी तक टू टू डबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब x और y जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में x और y बोलते हैं, मतलब i और j होता है हमारे यूनिट वेक्टर्स इन दैट केस. तो उसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने y और z ऐसा दिया हुआ है. प्लीज चेक, दे हैव गिवन दिस एज y एंड z. दिस इज z एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है इन दैट डायरेक्शन एंड दिस इज अ वॉल. ये एक वॉल है, दीवार है ये. ठीक है, चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या दिया है. अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन yz प्लेन. तो दिस इज yz प्लेन, x जो होगा एक्सिस वो ऊपर होगा, और हमको x को लेने की जरूरत नहीं है, उसको निगलेक्ट करेंगे हम लोग. ये परपेंडिकुलर होगा पेपर को. with a uniform velocity v with a uniform velocity v and its trajectory running parallel to positive y-axis and its trajectory running parallel to positive y-axis. मतलब ये जो पार्टिकल है या मास है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है कंटिन्यूसली, इंटरसेक्टिंग z एक्सिस एट a. वो ऐसे इस यहाँ से जा रहा है. ठीक है, द चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम, जैसे ही वो इस दीवार को टकराएगा, व्हाट इज द चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन. दिस इज द ओरिजिन, अबाउट द ओरिजिन as it bounces elastically, as it bounces elastically from a wall at y is equal to constant is. तो यहाँ पर ऐसा एक वॉल है, यहाँ पे ये जाके ऐसे इसको बम करेगा और वापस घूम जाएगा, वापस घूमेगा. तो व्हाट इज दिस चेंज इन एंगुलर मोमेंटम? उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट o, ये हमको पता करना है. क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सबको? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए, मुझे पता है, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया है कि भाई एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस टी बार. आर बार इज द रेडियस वेक्टर. ये क्या होता है? दिस इज द पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर. तो जब वो यहाँ पर चला जाता है, व्हेन इट गोज हियर, व्हेन इट गोज हियर, यहाँ पे इधर चला जाता है, इस पोजीशन का पोजीशन वेक्टर क्या होगा जी? व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर एट दैट पोजीशन? ये रहा. अच्छा, ये पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट. अब हम इसको x x एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा, तो फॉरगेट हो रहा है. y इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस ना, ये जो कांस्टेंट है इसे मैं y बोलूंगा. दिस इज y एंड कॉमा a. ये हो गया इसके कोऑर्डिनेट्स. सो व्हाट इज r बार इज इक्वल टू, इन दिस केस r बार इज इक्वल टू 0i प्लस yj प्लस ak. ये बन गया. ठीक है, isn't it? ओके, एंड ये हो गया उसका लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम. सो लीनियर मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी. अब उसका इनिशियल वेलोसिटी देखिए, जब वो जाएगा तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इट हैज गॉट इट्स इनिशियल वेलोसिटी. तो लेट अस टॉक अबाउट इट्स इनिशियल वेलोसिटी. जब वो इस तरफ जा रहा है तो इट विल हैव इट्स इनिशियल वेलोसिटी vi. initial velocity, this velocity is constantly going in this direction, so it has got only, मतलब it is in the x plane, तो इसका I component zero होगा, isn't it? It is having a constant z वाला coordinate, it is having a constant z वाला, but इसका velocity is in this direction along y direction, so इसका
वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, 0i, मैं इसको 0i प्लस the velocity is changing only along the y direction, तो इसलिए मैंने 0i and it is not changing, the velocity is not changing in z direction also, z direction भी अगर ये displacement मतलब ये a ही constant है तो it is not changing along y direction, it is changing only along the sorry z direction में change नहीं हो रहा है, सिर्फ y direction में change हो रहा है. So I'll say this velocity is vy और vj, this velocity is vj cap. और जब ये उसको बैंग करके उल्टा घूमेगा, जब उसको बैंग करके उल्टा घूमेगा, so it will have its velocity in the opposite direction. What is that velocity? जैसे ही वो यहाँ से इसको बैंग करके उल्टा घूमेगा, so it will have its velocity v final बार, ये बराबर उल्टा होगा, so that is equal to minus vj. Is this clear to you all? और so what will be the change in the velocity? Change in the velocity क्या होगा? I'll say change in the velocity delta v bar is nothing but v final minus v initial, v final bar minus v initial bar. So v final is minus vj cap minus vj cap. So कुल मिलाकर it will be minus 2vj cap. ये हो गया change in the velocity, isn't it? मुझे चाहिए what is the change in the angular momentum. ये है angular momentum. This is angular momentum. So change in the angular momentum क्या होगा? Change in angular momentum. Now this angular momentum is about origin, इसलिए मैंने position vector origin से लिया हुआ है. So change in the angular momentum is denoted by delta L bar is nothing but L final bar minus L initial bar. No, that is nothing but L final bar is nothing but R bar cross P final bar minus R bar cross P initial bar. बराबर है क्या? No, that is equal to, I'll take R bar is distributive ना, so this is nothing but P final bar minus P initial bar. Now that is nothing but R bar cross P final is nothing but mass into velocity final bar minus mass into velocity initial bar. ये इसमें से m भी बाहर आएगा, so it will be R bar cross m times Vf bar minus Vi bar, isn't it? So that is nothing but R bar मुझे पता है कितना है जी R bar is ये रहा R bar yj plus ak, it is yj bar plus a times k bar. Okay, I can say 0i also, यहाँ पर मैं 0i भी बोल सकता हूँ. Okay, this is R bar is crossed with m times मास कितना दिया है उसका, m is m only, m times vf bar minus vi bar is this, ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, डेल्टा v bar that is minus 2 vj bar. अब देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें से minus 2mv मैं कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर आएगा yj bar plus ak bar is crossed with j bar. ठीक है, अब आपको पता है कि I cross j is k, isn't it? But I cross I is 0. बराबर है क्या? So when I open this, ये तो 0 ही होगा. And j cross I is equal to minus k. तो इसको मैं देखता हूँ तो this will become k cross j. This k cross j, this is minus 2mv into y and a जो है ये बाहर ही आएंगे y into a, और इधर क्या आएगा k bar cross j bar. Now k bar cross j bar is nothing but minus I bar. This is nothing but minus I, minus minus plus हो जाएगा. So what is this? This will become 2mvya into I cap, ऐसा रहेगा 2mvya
2mvy, y क्या है भैया? 2mvya, and that will be the answer. 2mvy, y कहाँ गया इधर से? एक मिनट, y नहीं आएगा, ये तो जीरो आ रहा है ना, so y will not be there, that's why this y is missing from here. Yeah, because ये y वाला component zero, so 2mva into I cap, this is the answer, and that is equal to option. Now उन्होंने I जो component है उसको ex बोला है, 2mva into ex, yeah, ये आंसर होगा, B is the answer here. The unit vector along x direction they are calling it as ex cap, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने उसको. Is this clear to you all? Unit vector along the x direction they are calling it as ex, so that's the answer. Is this clear? Please answer. ये no doubt this is a double star problem. अच्छा problem था ये, बहुत अच्छा problem. Is this clear to you all? Hello, hello. पता नहीं, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपको. हेलो. Yes, sir. समझ ना? चलो अच्छी बात है. I'll switch over to the next question now. So this was the problem from NCERT exemplar. NCERT exemplar का अगला क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन जो है सेंटर ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है, तो वो नहीं करूंगा मैं, बाद में कर लेंगे. अब हम जाएंगे HC वर्मा 1. ये रही HC वर्मा 1 की बुक, या रोटेशनल मैकेनिक्स. इसमें से क्वेश्चन नंबर so that is the question from HC Verma 1, page number 197, question number 30. A body rotating at 20 radian per second is acted upon by a constant torque providing deceleration. ठीक है, एक बॉडी है, it is rotating at omega is equal to 20 radian per second. Is acted upon by a constant torque providing a deceleration. मतलब यहाँ पे अगर ये कोई बॉडी ऐसे घूम रहा है, तो बॉडी के यहाँ पे जो टॉर्क है वो टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन का है, तो टॉर्क इज इन दिस डायरेक्शन, अपोजिंग है. डिसेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू -2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. एट व्हाट टाइम विल द बॉडी विल हैव, मतलब यहाँ पर उसका टॉर्क है, तो उस टॉर्क की वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, पहले तो ये बॉडी जो है, जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगा. पहले वो जीरो टॉर्क की वजह से, टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में है, दिस इज द टॉर्क एंड दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी. तो उस टॉर्क की वजह से बॉडी का स्पीड कम होता जाएगा, फाइनली वो जीरो हो जाएगा, बट टॉर्क इज स्टिल एक्टिंग, जिसकी वजह से अब जो बॉडी है, दिस बॉडी विल स्टार्ट मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. मतलब उसका वेलोसिटी पहले तो कम होता जाएगा एंड दिस वेलोसिटी विल बिकम जीरो, बट स्टिल द टॉर्क इज एक्टिंग देयर, ओके. फिर भी यहाँ पर टॉर्क एक्ट ही कर रहा है, और फिर उसके बाद उस टॉर्क की वजह से स्टिल द टॉर्क इज एक्टिंग देयर, तो जिसकी वजह से वो जो बॉडी है उसका वेलोसिटी दूसरे दिशा में बढ़ना शुरू हो जाएगा, ओमेगा से, जीरो से उस तरफ जाएगा. सो दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन देयर. तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, एट व्हाट टाइम दिस इज गोइंग टू हैपन. इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू ऑल? क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? हेलो, मैंने पूछा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया क्या? Yes, sir. ओके. तो टाइम रिक्वायर्ड देखो क्या होगा, यहाँ से उधर तक जाने के लिए उसको टाइम t1 लगेगा, और उसके आगे जाने के लिए t2, बट इवेंचुअली t1 इज इक्वल टू t2 होगा.
क्योंकि ये डिसेलरेशन है और फिर यहाँ से वो आगे एक्सेलरेशन हो जाएगा। सो टोटल टाइम t इज इक्वल टू, उसको मैं t1 t2 बोलने के बजाय t और t ही बोल दूंगा। लेट मी कॉल दिस एज t एंड t। तो ये जो टाइम है इधर को, यहाँ से इधर आने के लिए उसको टाइम लगेगा t, और इधर से जाने के लिए भी t, तो टोटल टाइम विल बी 2t। तो मैं सिर्फ हाफ पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम आई सॉल्व। व्हाट इज दैट? ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा t, isn't it? ओमेगा t, ओमेगा 2 इज 0, ओमेगा 1, ये रहा ओमेगा 1, दिस इज ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा, एंड दिस इज ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0, एंड ओमेगा 3 इज अगेन ओमेगा बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। बट लेकिन मैं इसको एनालाइज ही नहीं करूंगा, मेरे लिए इतना काफ़ी है। ओमेगा 1 is 20 radians, whatever, plus alpha is actually minus 2 into time t. So t is equal to 10, 10 seconds, and therefore 2t is equal to 20 seconds. So this is going to happen in 20 seconds. Is this clear to you? ये बहुत आसान क्वेश्चन था ये, it was very easy. I'll go for the next question. अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। अब यहाँ पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी अप्लाई होंगे, प्लीज रिमेंबर। So this is the diagram. Figure shows two blocks. Figure shows two blocks of mass small m and capital M connected by the string passing over a pulley. The horizontal table over which the mass m slides is smooth. Smooth मतलब there is no friction. Smooth का मतलब है no friction. There is no friction here. You have to neglect the friction. Okay. The pulley has radius r. यहाँ पर ये जो पुली है उसका रेडियस है r. R and moment of inertia. This pulley has got moment of inertia also. Very important thing here. Okay, about its axis. It can freely rotate about this axis. Find the acceleration of mass m, assuming that the string does not slip. There is no slip. No slip condition. So इस पुली को अगर हम देखते हैं exaggerate करके, if I look at this pulley, if we look at this pulley, exaggerate करके उसको अगर हम देखें, तो यहाँ पर there is no slip. No slip मतलब नो स्लिप मतलब नो स्लिप मतलब a इज इक्वल टू आर अल्फा या v इज इक्वल टू आर ओमेगा, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो अब मुझे न्यूटन्स लॉज यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास। इस मास का एक्सेलरेशन चाहिए मुझे। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? चलो, बाय न्यूटन्स लॉज अब इसका इक्वेशन क्या होगा बताइए? इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मास, इस मास का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दूं, तो व्हाट आर फोर्सेस आर एक्टिंग हियर? नेचुरली मुझे ये बताइए कि पहले मोशन कौन सी दिशा में जा रहा है, कि भाई ये मास ज़्यादा है, ये मास कम है, तो ये नीचे जाएगा, ऊपर तो जाना है कि कोई गुंजाइश नहीं है। सो द मोशन इज टेकिंग प्लेस लाइक दिस, द मोशन इज टेकिंग प्लेस लाइक दिस इज द एक्सेलरेशन। अब मुझे एक चीज बताइए, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग? पहला तो फोर्स दिस इज एम ए, एंड देयर इज अ टेंशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन इसके बावजूद द मोशन इज टेकिंग प्लेस इन दिस डायरेक्शन। बराबर है क्या? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड इट इज गोइंग विद एक्सेलरेशन ए। ये एक्सेलरेशन ही मुझे चाहिए, ये उसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। इसके फ्री बॉडी डायग्राम का अगर इक्वेशन लिखो, देखो ये एक डाउनवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है, लेकिन टोटल रिजल्टेंट आएगा डाउनवर्ड फोर्स। तो व्हाट इज द टोटल रिजल्टेंट फोर्स हियर? एम ए माइनस टी इज द फोर्स, एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू एम ए।
F is equal to ma, mass is m, acceleration, this is mg, huh? weight is acting mg minus a, mg माइनस T1 बोलूंगा इस टेंशन को मैं, T1 इज इक्वल टू एम ए। ये पहला इक्वेशन हो गया मेरा, ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन इसके लिए लिखूंगा, इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, इसके यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। दूसरा मैं इस पुली का लिख लेता हूँ, T2 नहीं, ये टेंशन है T1, तो यहाँ का टेंशन जो होगा, इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, इस बॉडी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ कर लो यहाँ पे, तो इधर जा रहा है टेंशन T2, और वो टेंशन T2 देयर इज नो फ्रिक्शन हियर, तो ये टेंशन T2 अकेला काम कर रहा है, that is providing the necessary acceleration easy, so I'll straight away say that T2 is equal to ma, this is the second equation। और तीसरा इक्वेशन यहाँ से मिलेगा मुझे, देखिए यहाँ पे जो टेंशन है, इस पुली को नीचे खींचने वाला जो है वो टेंशन T1, we know that tension always acts away from the body, this pulley is under the consideration now। और दूसरा जो टेंशन है ये रहा, इस टेंशन को हमने T2 बोल दिया है, यहाँ का टेंशन इस पुली, इसका टेंशन T1 होगा और इसके अंदर का टेंशन T2 होगा, जो मैंने यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम्स में दिखाया है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। नाउ दिस इसका रेडियस इन्होंने r बोला है, द रेडियस हियर इज r, सो T1, और ये जो बॉडी है वो इस दिशा में ऐसे जा रहा है नीचे, ऐसे घूम रहा है नीचे, ठीक है। सो व्हाट इज द टॉर्क हियर, इफेक्टिव टॉर्क होगा, क्योंकि इसकी वजह से टॉर्क होगा T1 इंटू आर, वो क्लॉकवाइज होगा, एंड एंटी क्लॉकवाइज T2 इंटू आर, बराबर है क्या। इफेक्ट क्या होगा, इसकी वजह से पुली नीचे जाएगा और इसकी वजह से पुली ऐसे जाएगा, लेकिन दोनों में ये जीत जा रहा है, तो व्हाट इज द इफेक्टिव टॉर्क, इफेक्टिव टॉर्क इज नथिंग बट T1 माइनस T2, मुझे लिखना है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, बेसिकली इस इक्वेशन का यूज करना है। सो टॉर्क हियर इज T1 माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई, I is the moment of inertia of this, इस डिस्क का moment of inertia जो कि उन्होंने I बोला है, is equal to I, and alpha is equal to A upon R बनेगा, alpha is equal to A upon R, this is the third equation। इन तीनों equations को मुझे solve करना है। Did you understand this पुली वाला equation? टॉर्क होगा इसके ऊपर जो कि इस पुली को घुमाएगा, तो ये नीचे जा रहा है, इस टॉर्क की वजह से पुली ऐसा घूमने की कोशिश करेगी और इस टॉर्क की वजह से ऐसा घूमने की कोशिश की। अच्छा, बाय द वे यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव टॉर्क नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ मोमेंट इक्वेशन में आता है, जहां पर हम लिखते हैं समेशन ऑफ द मोमेंट्स इज इक्वल टू वगैरह वगैरह, तो उसमें आएगा पॉजिटिव निगेटिव। इधर सिर्फ मुझे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखना है, तो टॉर्क आई रोट हियर T1 माइनस T2 इंटू आर। डिड यू अंडरस्टैंड दिस, ये वाला टॉर्क समझ में आ गया क्या आपको, प्लीज से यस और नो, क्योंकि हर एक स्टेप में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, अगर एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आप बोलते हो कि नहीं ये मुझे एक्सप्लेन करो दोबारा, तो नहीं, मुझे ये बताओ एक एक स्टेप में जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन इफ यू से नहीं कुछ समझ में नहीं आ गया, तो उससे अच्छा है कि आप एक एक स्टेप ही चेक कर लो आपको समझ में आ गया क्या। प्लीज से यस और नो, इज दिस क्लियर टू ऑल, आई एम आस्किंग दिस टू एवरीवन, प्लीज आंसर इट। Yes, sir. हाँ, Yes, तो मुझे sir. हर एक स्टेप, देखो मैं हर एक स्टेप को पूछूंगा अभी, क्योंकि जो बड़े और लेंथी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए आपको हर एक स्टेप को आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अदरवाइज होता क्या है कि आपको एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन अगर आप बोलते हो तो मुझे ये पता करना डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा वाला जो स्टेप था आपके लिए डिफिकल्ट, या मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना चाहिए। तो ये पहले इक्वेशन मैंने तीनों के इक्वेशंस लिख लिए, अब मुझे बस इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इन तीनों इक्वेशंस में से मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, दैट्स एज सिंपल एज दैट, इजंट इट। तो आई विल ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, मैं तीनों इक्वेशंस दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहला इक्वेशन क्या है, द फर्स्ट इक्वेशन इज mg माइनस T1 is equal to m into a, the second equation is T2 is equal to ma small m, and third equation is T1 minus T2 into r is equal to I a upon r, this is the third equation। is this clear to you all? ठीक है, I will add here both these equations, okay। ये दोनों equations अगर मैं add कर लूंगा तो ये बन जाएगा mg, माइनस साइन कॉमन ले लीजिएगा यहाँ पे, ओके, mg माइनस साइन कॉमन लीजिएगा T1 माइनस T2
is equal to m plus m into a. Now I can substitute for t1 minus t2. Here t1 minus t2 is nothing but, what is t1 minus t2? Is equal to I a upon r square. Okay, let me substitute here. So this will become mg minus I a upon r square is equal to m plus m into a. And therefore अब मुझे acceleration चाहिए, तो ये इस तरफ लेके जाइए. So this will become mg is equal to I upon r square plus m into a. एंड अब ये ब्रैकेट मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो ये नीचे चला जाएगा. सो व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? दिस विल गिव मी देयरफॉर a is equal to mg upon m plus I upon r square. Well, this is the expression and that is the answer. This is the answer. ये ऑप्शन में दे सकते हैं, but this is a very nice question. No doubt this is a star question, star problem. Is this okay? Please tell me whether this is clear to you. इसमें किसी को कुछ डाउट्स है तो मुझे बताइए. I will explain that particular step. हेलो हेलो No, हेलो sir. हेलो. No, sir, quite clear. समझ में आ गया ये? इसी तरह के और एक दो क्वेश्चन है आगे के भी. आगे के और एक दो क्वेश्चन इसी टाइप के, इसी पैटर्न के हैं जो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी इन्वॉल्व था. ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी इन्वॉल्व था इसके अंदर. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, which is again running on the parallel lines. Question number 34. Question number 34. Yeah. तो इसका डायग्राम is the diagram for that. क्या दिया देखिए यहाँ पे. इसका भी मुझे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है. A string is wrapped on a wheel of moment of inertia. ये इसका moment of inertia दिया है I is equal to 0.20 kg meter square. Radius is 10 and goes through a light pulley. Now this is a light pulley. This pulley is light pulley. Light pulley मतलब क्या है जी? मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टू बी निग्लेक्टेड. ठीक है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस दिया जाता है, यू हैव टू कंसीडर दैट. गोस थ्रू द लाइट पुली टू सपोर्ट द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg. ठीक है, अब व्हाट इज द लाइकली डायरेक्शन ऑफ मोशन हियर? व्हाट इज द लाइकली डायरेक्शन ऑफ मोशन हियर? मोशन का लाइकली डायरेक्शन कैसे होगा? यस, मोशन विल हैव इट्स डायरेक्शन विल बी, देखिए ये मास नीचे चला जाएगा, ये ऐसे घूमेगा and this will turn like this. This is the likely direction of motion. Now let me draw the free body diagram. इसके free body diagrams में draw कर लूँ. ठीक है, तो free body diagram अगर मैं draw कर लूँ इसका, तो वो कुछ इस प्रकार होगा. आप can you help me with that? इसका free body diagram कैसे होगा? This will have its weight acting downwards. This will have mg और ऊपर खींचेगा टेंशन. टेंशन इज ऑलवेज अवे ना, तो आई कॉल दिस टेंशन एज टी. टेंशन इज टी. ठीक है, दोनों में कौन जीत रहा है? ये जीत रहा है. द मोशन इज इन दिस डायरेक्शन. सो व्हाट इज द इफेक्टिव फोर्स? mg minus t. This is F is equal to ma, acceleration, isn't it?
ऐसा जाएगा। टू सपोर्ट दिस फाइंड द एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन ही मुझे फाइंड आउट करना है। ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एक्सेलरेशन ही मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ दिस इज अ लाइट पुली, तो यहाँ का टेंशन टी होगा और यहाँ का भी टेंशन टी ही होगा, यहाँ का टेंशन भी टी ही होगा। सो अगर मुझे इसका तो ये जो टेंशन होगा, इस टेंशन, इस पुली का अगर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, गौर से देखिए, इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये कैसे होगा फ्री बॉडी डायग्राम? देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन, ये टेंशन है इसके अंदर, ठीक है, दिस इज द टेंशन, and this tension is acting at what distance? It is acting at the radius distance r. So what is the torque here? Torque is into perpendicular distance. This tension is a force, huh? So what is the torque? Tau is equal to I into alpha, ये होगा। So what is the torque here? The torque is T into R. Moment of inertia इसका I है, and angular acceleration. Now this is a perfect rolling motion. तो यहाँ पे मुझे A is equal to R alpha अगर मैं लिखता हूँ, तो यहाँ का acceleration और इधर का angular acceleration they are connected by this. Therefore what is alpha is equal to A upon R. मुझे हमेशा इस alpha के लिए A upon R लिखना पड़ेगा, so that the tension is given by T is equal to IA upon R square. So this is equation 1 and this is equation 2, और ये 2 मुझे इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, as simple as that. So this will become mg minus t के जगह पर आएगा IA upon R square is equal to, और ये इस तरफ चला जाएगा, so this will become mg is equal to acceleration कॉमन आएगा and this will become m plus I upon R square. Okay, and that will give me what is the acceleration is equal to mg upon m plus I upon R square. Well, this is the acceleration. इसमें मुझे बस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। So acceleration is equal to, अब ये जो acceleration के वैल्यूज है, mass of the block is 2 kg, g का वैल्यू मैं 9.8 ले लूंगा या फिर 10 ले लूंगा। कैलकुलेटर्स, कैन यू प्लीज टेक आउट द कैलसीज, डिवाइड बाय m इज अगेन 2 kg, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका 0.2 एंड 10 सेंटीमीटर का रेडियस है, द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 का स्क्वायर, दैट इज 0.01. Okay, so that will be 9.8, 19.6, 9.8 into 2 divided by, this will become 8, 2, 8, 2, 20, 22. So this is 11, 11, 0.8 88, 10 बचा, और एक जीरो आ गया, 99, 1 बचा, so 0.89 meter per second square. This is the acceleration. Is this okay? And this is again a star problem, I would say. A star problem था, इसके पहले भी star वाला ही था. I hope this is clear to you all. Hello, hello. Is this clear to you all? Hello, hello. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? चलिए, अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। We go for the next question now. अब इन्होंने कुछ चेंज किया है। सपोज द स्मॉलर पुली, ऊपर के क्वेश्चन में, suppose the smaller pulley in the previous problem has radius 0.5 centimeter and moment of inertia 10. Find the tension in the part of the string joining the pulleys. सेम डायग्राम, यही डायग्राम है, लेकिन अब इन्होंने क्या बोला है कि देयर इज द स्मॉलर पुली जो है ना, उसका भी कुछ हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है। मतलब ये जो बड़ा वाला पुली है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो दिया है, दिस आई इज इक्वल टू, क्या था वो, 0.2, I'll call this as I1 and radius is R1.
ठीक है, kg मीटर स्क्वायर। ये जो दूसरा पुली है उसके बारे में भी अपने को बोला है। सो दिस रेडियस इज r1। और ये जो दूसरा पुली है I2, वो कितना दिया है? I2 इज इक्वल टू 0.1 kg मीटर स्क्वायर, और उसका रेडियस भी दिया है 5 सेंटीमीटर। ओके, बोलिए कैसे करना है। चल, और यू डू दैट। सेम वही करना है, पहले हर एक का हम मोमेंट द फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, आई विल शो हियर ऑल द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ओवर देयर। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो अगर हम दिखा दें। फर्स्ट बॉडी, फिर यहाँ पर आएगा ये पुली छोटा वाला, फिर आएगा बड़ा पुली, इधर बड़ा वाला। समझे क्या? चलिए एक एक करके। और मोशन कैसा है? मोशन इज टेकिंग प्लेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एज वी नो, द मोशन इज टेकिंग प्लेस, नीचे के डायरेक्शन में मोशन इज टेकिंग प्लेस। द मोशन इज गोइंग, ये ऐसे जा रहा है मोशन। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पर इसका वेट एक्ट करेगा, यहाँ का टेंशन है T1 और ये टेंशन है T2। तो मुझे T2 पता करना है। दे आर आस्किंग व्हाट इज T2। ओके, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट टेंशन इन द पार्ट ज्वाइनिंग द टू पुलीज, मतलब T2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है यहाँ। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। चलिए यहाँ पे ये है इसका वेट, सो दिस इज m इंटू जी, और ऊपर खींचेगा इसको टेंशन T1, लेकिन जीतेगा ये। तो इक्वेशन क्या होगा इसका? mg माइनस T1 इज इक्वल टू ma। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, है ना। दूसरा, अब देखिए इसको इधर आ रहा है T1, एक टेंशन उसको नीचे खींच रहा है ऐसे, इस टेंशन इज T1, और दूसरा टेंशन इसको इधर खींच रहा है, ये T2 है। लेकिन जीत कौन रहा है? वही ये वाला जीत रहा है। सो व्हाट इज द टॉर्क हियर? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लिखना पड़ेगा मुझे। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो आई मतलब I2, और एक्सेलरेशन अगर इसका a है तो एक्सेलरेशन a, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल टू R2 अल्फा, a इज इक्वल टू R2 इंटू अल्फा, ऐसा बनेगा ये। समझे क्या? सो टॉर्क कितना होगा यहाँ पर? T1 माइनस T2। टॉर्क क्या होगा यहाँ का? टॉर्क विल बी T1 माइनस T2। ये चीज़ मैं उधर लिख लेता हूँ बिलो, ये चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ। सो इट इज T1 फॉर पुली, फॉर स्मॉल पुली। So T1 minus T2 into R, this is the torque, is equal to I2 is equal to T1 minus T2 into क्या बनेगा रे? हाँ, T1 minus T2 into I2 into alpha, T1 minus T2 into I2 alpha। एंड फॉर लार्जर पुली, ये है बड़ा वाला पुली, इसके लिए तो एक ही है टॉर्क, ये एक ही फोर्स है यहाँ पे जो अप्लाई करेगा, ये वाला है। तो दिस इज T2। तो उसके लिए अगर मैं T1 T2 टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लिखता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा? टॉर्क यहाँ का होगा T2 इंटू आर इज इक्वल टू I1 इंटू अल्फा, I1 इंटू अल्फा, इधर देख। अब अल्फा, सब्स्टिट्यूटिंग T2 इन इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन मिल गए मेरे को।
2 into अल्फा, अल्फा सेम होगा क्या दोनों का? एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट ना, एक्सेलरेशन सेम होगा इसका। Let me call this as alpha 2, समझे क्या? सो दिस विल बिकम, और यहाँ पर होगा अल्फा 1 एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? T2 इंटू आर इज वॉट? R1 ना। समझ में आ रहा है क्या? तो T2 इज इंटू R1 इज इक्वल टू I1 मुझे पता है, एंड अल्फा 1 होगा A इज इक्वल टू R1 अल्फा 1 इज इक्वल टू R2 अल्फा 2। देखो ये जो सिस्टम है इसका लीनियर एक्सेलरेशन सेम होगा, लेकिन इसका रेडियस छोटा है और इसका रेडियस बड़ा है, तो छोटे वाले रेडियस को मैंने R2 बोल दिया, तो करस्पॉन्डिंग एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 2 होगा और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 1 होगा। गौर से देखिए, ठीक है। सो व्हाट इज अल्फा 1 इज इक्वल टू A अपॉन R1, दिस इज A अपॉन R1, और इन अदर वर्ड्स T2 इज इक्वल टू I1 A अपॉन R1 स्क्वायर। सिमिलरली यही चीज मैं नीचे भी कर लूंगा इधर भी। सो T1 माइनस T2 इंटू R2, so this will become I2 into अल्फा, ये R2 हो जाएगा इधर, एंड दिस इज A अपॉन अल्फा 2, सॉरी अल्फा नहीं R होगा, A अपॉन R2, A अपॉन R2। सो दिस इज T1 माइनस T2 इज इक्वल टू I2A अपॉन R2 स्क्वायर। अब तीन इक्वेशन देखिए मुझे साइमल्टेनियसली जो सॉल्व करने, ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, और ये तीसरा इक्वेशन है, ठीक है। इफ आई एड ऑल दिस थ्री इक्वेशंस, मुझे T2 चाहिए ना। इफ आई वांट T2, एक्सेलरेशन मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा इसमें से, और तो एलिमिनेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ये होगा दूसरा इक्वेशन। आई विल ऐड ऑल दिस थ्री इक्वेशंस, ये दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन, तीनों इक्वेशंस को मैं सीधा सीधा ऐड कर लेता हूँ, तीन इक्वेशंस। तो बाय एडिंग थ्री इक्वेशंस वी गेट, क्या मिलेगा देखिए, बाय 1 प्लस 2 प्लस 3। देखिए ये प्लस T1 है, ये प्लस T1 माइनस T1 गेट्स कैंसिल यहाँ पे, एंड प्लस T2 माइनस T2 गेट्स कैंसिल। तो कुल मिलाकर LHS में सिर्फ mg ही बचेगा, इज इक्वल टू, इधर से एक्सेलरेशन 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 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा m प्लस I2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस I1 upon R1 square, and that will give me the acceleration is equal to mg divided by m plus I2 upon R2 square plus I1 upon R1 square. So that will give me what? Acceleration is equal to m कितना दिया है यहाँ पे? What is the mass? The mass is given to be 2 kg. So this is 2 into 9.8 divided by 2 plus I2. I2 is 0.1 and this is 0.05, 25 into 10 raised to minus 4 plus I1 0.2 divided by R1 का स्क्वायर, R1 is 0.1, 0.1 का स्क्वायर 0.01, तो ये बन जाएगा 2 into 9.8 divided by 2 plus 10 raised to minus 4 ऊपर जाके plus 4 plus 3040 plus 20, so that will give me 2 into 9.8 upon 62,
upon 62. So that will come out to be 62, no? No, let me do the calci. 19.6 upon 62. 0.31. 0.316. So this acceleration is equal to 0.316 meter per second square. और अगर मुझे T2 चाहिए तो I'll put it directly in equation number 3. Substitute in equation 3. So from equation 3, T2 is equal to I1 A upon R1 square. I1 A upon R1 square. I1 is 0.2 I1 upon R square. ये है ना यहाँ पे खुला बना है I1 upon R square R1 square is equal to 20, so it will be 20 into 0.316. तो 0 प्लस 12 2 में 3 3 में 6.32. This will be the tension there, 6.32, and that's the correct answer. आप चेक कर सकते हो, that's the correct answer. Is this clear to all? ये समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर मैंने ये तीनों प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो स्टार प्रॉब्लम आई वुड से, ये भी एक स्टार प्रॉब्लम ही है. एस सी वर्मा के ये तीन प्रॉब्लम हमने आज किए, 1 2 3 4 प्रॉब्लम किए, इसमें से 3 स्टार प्रॉब्लम्स कर लिए. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. हेलो.